So we have our guest online, and as we said, this will be our second session of the birthday bonanza month. And our birthday, the White Aura's birthday, is on 15th of August. And we are so honored to have Mr. Karan Kakkad for the second time on this session. So welcome, sir. Karan Kakkad is an international nutrigenomics and disease reversal expert based in India. He is an expert in holistic nutrition and also associated with American Fitness Professionals and Associates. His passion in medical nutrition led to the birth of Reverse Factor, which is backed by an extensive research in the field of nutrigenomics. The scientific study, nutrigenomics is the scientific study of the interaction of nutrition and genes. Nutrigenomics has revolutionized the world of prevention, treatment, and reversal of lifestyle disease. So, we welcome you, sir. Thank you for being here and gracing our platform for the second time. Yes, very, very good morning. And thank you so much for that lovely introduction. Thank you, sir. Welcome. We are honored. Pleasure is equally mine, yeah. So, sir, before we could just start the session, the most common question that comes to mind is like, what is the cause of diabetes, and what are what do you mean by type 1 diabetes and type 2 diabetes? Perfect. So, broadly speaking, there are three types of diabetes. Okay. And I request all the participants, there are around 70 participants today. I request all of you to understand this very, very carefully for next 1 hour. Any questions, feel free to ask me, 100 times, but let us understand what is right and what is not right. Yeah. And meanwhile, perfect, great. So 1 second, just I increase the volume if you can. Yeah, sure. You want me to say a little louder? Yes, please. Perfect. So there are three types of diabetes, right? Number one is type 1 diabetes, which generally happens to young kids, 4 years, 5 years, 6 years, type 1 diabetes. Second is type 2 diabetes, which is the normal diabetes that we understand, that happens to people 25, 30, 35, 40, 45 years. That is type 2 diabetes, which happens to 90% plus population. Okay. So 90% of all diabetes people have type 2 diabetes. Okay. And number three is gestational diabetes, which is diabetes when happens to pregnant women. Okay. So type 1 diabetes, type 2 diabetes, and gestational diabetes, because when people are pregnant, so hormones keep fluctuating, and insulin in our body is a hormone which keeps fluctuating. So during pregnancy, a lot of women get diabetes, which is known as gestational diabetes. Most of them after their pregnancy are okay, hormones balance, they don't have diabetes. All right. So majority is type 2 diabetes, which is 90% of the population. And interestingly, the root cause of all these three types of diabetes is completely different. Children who have type 1 diabetes, okay, the reason for that is their pancreas are not making insulin because of few reasons. The misfortune, there are few antibiotics which they're exposed to in first couple of years that could lead to the damage of pancreas. The reason could be multiple, but it's very unfortunate because they're kids. We get so many people 4 years, 6 years, 8 years. It's not their fault, right? But the pancreas are not able to generate enough insulin, or very little or not sufficient insulin is being produced by their pancreas. So from that young age, they are dependent on external insulin because their pancreas are not able to make insulin. All right. Gestational diabetes is
while women are pregnant, hormones keep fluctuating, and that is the reason why insulin, which is one of the hormones, also keep fluctuating, and therefore they get diabetes for a short period of time. Now, both of these, type 1 and gestational, constitutes around 8 to 10% of the total diabetic population. 90% plus is type 2 diabetes, which happens to generally people, 30, 35, 40, 45, 50 years, and things like that. Now, the reason, understand this very, very well now. We are going to focus today's discussion on type 2 diabetes because it affects majority of us, right? The type 2 diabetes is not a problem of high sugar. High sugar is the end result of type 2 diabetes. But the root cause is something else. You understand what I'm saying? Now, there is something known as insulin resistance, which I will discuss in due course of time. Insulin resistance is the root cause of type 2 diabetes. And the reason we get insulin resistance is our lifestyle, our food, sedentary lifestyle, too much stress levels, bad food. So, insulin resistance is one of the root cause of type 2 diabetes. That is something we need to understand. And the only way we can reverse type 2 diabetes is if we reverse insulin resistance. Now, if my fasting sugar is 100, your fasting sugar is also 100, right? But if I am taking 4 medicines, insulin injection, and फिर मेरा fasting 100 है और आपका fasting sugar 100 है without medicine, without insulin, पेपर में दोनों का 100 है, but you are much better than what I am because your sugar fasting is normal without medicine, without insulin, and my sugar fasting is 100 with medicine, with insulin. You understand what I'm saying? So we need to understand this. It is not about just the number. Number तो नीचे आएगा ही, but we have to do it in the right manner. You understand? People who have diabetes, they age thrice. Okay, people who have diabetes, they age thrice faster. When I say thrice faster, मतलब उनके अंदर के organs वगैरह 3 times ज़्यादा fast, they age. जिनको diabetes है, they are at 3 times more risk of a heart attack. जिनको diabetes है, they are at 2 times more risk for a kidney problem. आज हमारे पास हर हफ्ते 20 से 25 किडनी पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है. ऑलराइट, 20 से 25 किडनी पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है. अगर आपके सर्कल में आप देखेंगे ना, जिनको भी किडनी प्रॉब्लम है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल इज हाई, 15-20 साल से, इफ यू लुक एट देयर हिस्ट्री, 15-20 साल से उनको या तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या दोनों चीज. तो क्या वो गोली नहीं खा रहे थे? वो तो रोज गोली खाते थे, पर कभी भी उन्होंने जड़ से अपने आप को ठीक नहीं किया. You understand what I'm saying? So it is not about medicine or no medicine. It is about body अंदर से अच्छा होना चाहिए, हमें जड़ से उसको ठीक करना है. So my first message to all of you is that हमें ये माइंडसेट रखना है कि हमें डायबिटीज के साथ नहीं जीना है. बहुत जन के डायबिटीज हो गया, गोली चालू हो गया, अभी लाइफ लॉन्ग गोली लेते रहना है. नो, डायबिटीज इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग डिजीज. It is a lifestyle disease. Please understand. So when I'm saying diabetes, I mean type 2 diabetes, right? Our entire discussion is going to revolve about type 2 diabetes. So please understand that type 2 diabetes एक lifelong disease नहीं है, वो एक lifestyle disease है. तो अगर हम हमारी lifestyle, हमारा खान पान, हमारी exercise, walking, stress level, sleep quality, ये सब अगर हम अच्छा करें, तो हम धीरे 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 उसको रिवर्स कर सकते हैं.
किसी को 4 महीना लगे, किसी को 8 महीना लगे, पर अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा ही होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? सो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट आप सबके साथ है कि हमें ये माइंडसेट रखना है कि डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल बीमारी है, एंड वो 100% हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। अभी रिवर्स करने के लिए क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले हमारा माइंडसेट तो होना चाहिए। मेरे गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे कि दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण अज्ञान है। लोगों को सही चीज का ज्ञान ना हो तो वो गलत चीज करते हैं, जिसके कारण रिजल्ट गलत मिलता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक यंग बॉय 24-25 years had come, 24-25 years, उसको डायबिटीज हुआ था, HbA1c जो 3 months एवरेज ऑफ शुगर है, that was 7.5, something like that. Now when I discussed with him last 10-15 years lifestyle, नहीं के बराबर फ्रूट खाता है, खाने के साथ रोज भुजिया चाहिए, खाने का टाइम 9:30-10 बजे का। सो his habits, his lifestyle are bad. हफ्ते में 4-5 बार बियर या तो रेड बुल पीता है, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक, उसमें भर भर के चीनी, उसको लगता था रेड बुल से एनर्जी मिलता है, बट इट इज ओनली शुगर। अब महीने में 1-2 बार पिया, 3-4 महीने में 1-2 बार पी लिया किसी के साथ पार्टी में, इट्स ओके, बट रेगुलर थोड़ी ना पीना चाहिए, राइट? सो एवरी डे ही वाज डूइंग बैड थिंग्स एज अ हैबिट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मानो आज से और 3-4-5 साल सेम लाइफस्टाइल रहेगा, शुगर लेवल बढ़ेगा, लिवर थोड़ा फैटी होगा, फिर वो करेगा क्या? मेडिसिन लेगा। नॉर्मल सिनेरियो, व्हाट डू पीपल डू? दे टेक मेडिसिन, बट दे डोंट चेंज लाइफस्टाइल। उनकी आदतें, उनकी बिहेवियर, उनकी हैबिट्स, दे डोंट चेंज। एंड लास्ट 6 साल में हमने इतने जन को देखा है, उनका डायबिटीज रिवर्स होते हुए, इंसुलिन बंद होते हुए, मेडिसिन कम होते हुए। The one thing that they do all right is they change their habits. उनकी आदतें वो सुधारते हैं। दुनिया में सबसे घटिया वर्ड इज डाइट। कोई भी इंसान को डाइट करने का जरूरत नहीं है, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। वंस अ वाइल आप बाहर खाइए, एंजॉय करिए, नो प्रॉब्लम, पर डे टू डे आवर हैबिट्स शुड बी राइट। आज यहाँ पे देयर आर अराउंड 100 पीपल। आज हम सबको क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए कि जब हम सब 60-70-80 साल के हुए, वी शुड बी फिट, फाइन, हेल्दी। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। एंड अगर हमको 60-70-80 साल में फिट रहना है ना, तो कोई डाइट नहीं काम आएगा, आपकी आदतें ही काम आएंगी। So my humble request to all of you is change your habits, change your lifestyle. So first message is कि माइंडसेट चेंज करेंगे। डायबिटीज एक लाइफ लॉन्ग बीमारी नहीं है। जैसे टारगेट्स कैसे होते हैं, ऑफिस में टारगेट्स होते हैं ना, अचीव करने हैं, हम मेहनत करते हैं, कभी ज्यादा अचीव हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो आप टारगेट रखो कि मेरा HbA1c अभी 10 है, मुझे 8 महीने में उसको 7 के अंदर लेके जाना है, 6 के अंदर लेके जाना है। एंड सही काम करो, सही इनपुट करो, सही एफर्ट्स दीजिए, एंड सही डायरेक्शन पे सही एफर्ट देंगे तो वो 100%, 99 भी नहीं, 100% वो बेटर होता है। अब समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? So first message, mindset to be changed, that we will not live with diabetes. हम उसके साथ नहीं जिएंगे। 5 गोली खाते हैं तो 1 में आ जाएंगे, 4 गोली खाते हैं 1 में आ जाएंगे, 2 गोली खाते हैं बंद हो जाएगी, whatever, but we will improve. If not 100%, we will reverse 80%, but we will do it. That should be the mindset. जब सही mindset बना, next step is सही ज्ञान लेना। You have to understand कि हमें करना क्या है रिवर्स करने के लिए। And once you have the right mindset, फिर आपको सही ज्ञान मिले, then the third step is make it your lifestyle, make it your habit. आज हम बहुत सिंपल चीजें बताएंगे which I want people to apply. And I'm telling you, आप 100 जन अगर अप्लाई करेंगे ना,
तो 95% लोगों को विद इन 1 मंथ 1.5 मंथ में दिखेगा अरे मेरा शुगर कम हो गया। 95, कुछ कुछ होते हैं ट्रिकी केसेस, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, दैट्स ओके, बट 95% ऑफ यू विल सी इन अ मंथ्स टाइम कि यस फास्टिंग थोड़ा कम है, अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, 100%। बट कॉन्सेप्ट को समझो, प्रिंसिपल्स को समझो, डाइट के पीछे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? किसी को कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। जो भी हम समझा रहे हैं उसके प्रति कुछ भी नहीं समझे तो आप प्लीज यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। बट आज हम 1 घंटे बाद जब यहाँ से बाहर जाए, वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर, एंड आपकी डायबिटीज को आपसे डर लगना चाहिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो Simran, you can quickly share the presentation. I will very quickly. That's a good question. Ritvik ji, is type 1 diabetes reversible? Now, Ritvik ji, आप इस क्वेश्चन को ना पार्क करो थोड़े टाइम के लिए। हम अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस जब समझाएंगे ना कि हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, तब हम आपका एक प्रश्न को समझाएंगे अच्छे से कि आप समझ पाएंगे। ओके, लवली। सिमरन, यू कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन वेरी क्विकली। हम आज कुछ शेयर करेंगे आपसे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, एंड फिर इफ यू हैव क्वेश्चंस वी कैन कीप डिस्कसिंग, राइट? लेट्स रन थ्रू इट क्विकली, सिमरन। सो वेरी क्विकली, नेक्स्ट, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म हेल्थ, मतलब हमें 2-4 महीने के बारे में नहीं सोचना है, राइट? हमें लाइफ लॉन्ग फिट रहना है, 60, 70, 80 साल के लिए फिट रहना है, वो हमारा माइंडसेट होना चाहिए। डाइट हम कभी वर्ड यूज नहीं करेंगे आज के बाद, क्योंकि हमें हमारी आदतें अच्छी करनी है। तीसरा हम समझेंगे रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, हाउ टू रिवर्स टाइप, wherever diabetes is written you consider as type 2, okay, that I've explained, how to reverse type 2 diabetes and reduce medicine or stop medicine. And number 5 is 4 pillars of good health. अगर आप सब ये 4 चीज अच्छा रखेंगे ना, तो लाइफ में 80 साल तक आप 100% अच्छे रहेंगे। ओके, नेक्स्ट। सो द साइंस दैट वी प्रैक्टिस इज न्यूट्रीजिनोमिक्स। न्यूट्रिशन से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ जस्ट स्टॉप शेयरिंग वंस। आप लोग सब जन प्लीज ध्यान से समझे। बाहर से हमारे बॉडी में जो भी जाता है ना, वो या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तीसरा कुछ काम नहीं है। अंडरस्टैंड? बाहर से हमारे बॉडी में जो भी जाता है वो या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तीसरा कोई काम नहीं है। एंड बाहर से हमारे बॉडी में क्या जाता है? 2 चीज, एक विचार, थॉट्स, इमोशंस, एंड दूसरा खाना पीना, राइट? हमारा खान पान एंड हमारे थॉट्स एंड इमोशंस, ये एवरी डे बाहर से हमारे अंदर जाते हैं। एंड अगर हम इसको अच्छा रखेंगे तो एवरी डे वी कैन बिकम बेटर। आज हमारे साथ हीरालाल जी है, हीरालाल जवर जी। मानो हीरालाल जी अगले 1 हफ्ता रोज कचौड़ी, सब्जी, भुजिया, पकोड़ा, पिज्जा, बर्गर ये सब खाएंगे, तो 1 हफ्ते में वो चीज उनके अंदर जाके या तो अच्छा करेगा या बुरा करेगा, राइट? कीप टेलिंग मी इफ माय वॉइस इज ओके और नॉट। सो एंड अगर नेक्स्ट 1 वीक, उसके बाद 1 हफ्ते में हीरालाल जी अगर ब्रोकली, गाजर, पर्पल कैबेज, बेदाना, पोमीग्रेनेट, गुआवा, नाशपाती ये सब चीज खाएंगे, तो वो सारी चीजें वो 1 हफ्ते में उनके अंदर जाके अच्छा करेगा, राइट? विच मीन्स दैट एवरी डे हम जो भी खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाके या तो अच्छा करता है या बुरा करता है, तीसरा कुछ काम ही नहीं। विच मीन्स दैट अगर एवरी डे हम इंश्योर करें दैट व्हाटएवर वी आर ईटिंग एंड व्हाटएवर वी आर थिंकिंग, इमोशंस, थॉट्स, अगर ये सही डायरेक्शन पे है, then it will start healing us, it will start reversing the problem, it will start making good health. And अगर वो wrong direction में है तो it will create more problem, more disease. Understanding what I'm saying?
Simran, you can share. So the science that we practice is nutrigenomics के न्यूट्रिशन से हमारे जीन्स कैसे चेंज होते हैं, वो जो खाना अंदर जाता है वो सेल्यूलर लेवल पे कैसे चेंजेस करता है. That is what we practice and that is what we do every single day. So broadly speaking, दो टाइप की बीमारी है. Number one, acute disease, infection disease. Number two is chronic and lifestyle disease. Infection disease मतलब पोलियो, मलेरिया, डेंगू टाइप की. And lifestyle disease मतलब diabetes, blood pressure, heart disease, thyroid, cholesterol, fatty liver, kidney problem. 100 साल पहले कौन सी बीमारी ज्यादा थी? Infection disease. बहुत कम lifestyle disease, बहुत कम diabetes, बहुत कम heart disease 100 साल पहले. But last 20, 30, 40 साल में lifestyle disease हर घर में किसी ना किसी को. But the problem is that हम lifestyle disease को उसी तरीके से ठीक करना चाहते हैं जैसे आप इन्फेक्शन को ठीक करते हैं गोली खा के. अब बॉडी में इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक ले लो, ड्रग्स ले लो, मेक सेंस. बट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके खाने पीने और लाइफस्टाइल के कारण है, तो खाली गोली लोगे और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करोगे, दैट डज नॉट मेक सेंस. राइट, नेक्स्ट. So the problem is 1920-30 death in India because of lifestyle disease was 10%, but 2015 statistics, death in India because of lifestyle disease is 67%. 100 जन मरते हैं इंडिया में, 67 लाइफस्टाइल डिजीज के कारण मरते हैं, जो बीमारी इस दुनिया में होनी नहीं चाहिए. Okay, let us look at the common statistics. Next. So common fact about diabetes. India में 77 million people are diabetes, मतलब 7.5 करोड़ आदमी डायबिटीज. और यहां बात कर रहे हैं कि डायबिटीज वो रिवर्स हो सकता है. बट ये लोग क्यों रिवर्स नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बस वो गोली लेके नंबर नीचे रखना चाहते हैं. वो इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, खाना पीना चेंज करना, या तो उनको वो ज्ञान नहीं है, या अगर किसी को ज्ञान है तो वो एफर्ट नहीं देना चाह रहा. 1 in 6 people in the world with diabetes are from India. Okay? For an individual, अगर life from diabetes रहे तो at least साल का 35 to 75,000 खर्चा होता है. एंड उसमें भी वो रूट कॉज ठीक होता नहीं है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ता है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम. आपको मालूम है इनफैक्ट वर्ल्ड में द नंबर 1 कॉज ऑफ आई ब्लाइंडनेस इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज रेटिनोपैथी, कॉम्प्लिकेशंस टू आई. Right, kidney problem, heart, stroke, and things like that. So why do we want to live with diabetes? Why can we not reverse diabetes? Next. So करे तो क्या करें? Right. So the answer to lifestyle disease is not another medicine. The answer to lifestyle disease like diabetes is lifestyle changes. हमारा खाना पीना, lifestyle, all of that. Next. कोई भी खाना इस दुनिया में 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 एनिमल फूड, नंबर 2 प्रोसेस्ड, नंबर 3 प्लांट फूड. एनिमल फूड मतलब नॉनवेज एंड मिल्क व्हिच इज एनिमल प्रोटीन. प्रोसेस्ड फूड कोई भी चीज पैकेट में आता है, भुजिया, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स. एंड प्लांट फूड मतलब फ्रूट, वेजिटेबल, स्प्राउट्स, राजमा, छोला, ऑल ऑफ दैट. अभी आप सब टाइप करके चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से इस तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है, प्लांट, प्रोसेस या एनिमल? बस इतना लिखिए. आपके हिसाब से इस तीनों में सबसे अच्छा कौन सा है, प्लांट, प्रोसेस या एनिमल? वेरी नाइस, प्लांट. ओके, सो मेजॉरिटी आप लोग सब समझते हैं दैट प्लांट फूड्स आर मच बेटर. ओके ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई. हमें हर चीज समझ के करना है. साइंटिफिकली प्रूवन एनिमल फूड एंड प्रोसेस फूड्स, okay, animal food and processed foods increase lifestyle disease and especially diabetes. Okay, and plant food reverses diabetes or decreases risk of lifestyle disease. Okay, so आप लोग जो सब कह रहे हैं साइंस भी वही कहता है. Okay, now let us understand why. हमें हर चीज समझ के करना है. So there are many reasons क्यों plant food is much better than animal and processed food, but the top 2 reason
जो डायबिटीज एंड ओवरऑल लाइफ हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द टॉप 2 रीजन इज नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एप्पल को काट के बाहर रखो काला हो जाता है, भुजिया ब्रेड बिस्किट को काट के बाहर रखो काला होता नहीं है, राइट? एप्पल को काट के बाहर रखो काला हो जाता है, ब्रेड बिस्किट भुजिया को काट के बाहर रखो काला नहीं होता है, क्योंकि एप्पल के अंदर जान है, राइट? लिविंग सेल्स। ब्रेड बिस्किट भुजिया के अंदर कोई जान नहीं है। हमारे वी आर लिविंग बीइंग्स, हमारे अंदर करोड़ों सेल है, और हमारे अंदर करोड़ों सेल है, और हर एक सेल में देयर इज लाइफ। ओके, हर एक सेल में देयर इज लाइफ, एंड उसमें लिविंग सेल चाहिए। तो हमारे बॉडी में भी बाहर से लिविंग सेल ज्यादा जाने चाहिए, एंड लिविंग सेल कहां मिलेंगे? ओनली प्लांट फूड्स। सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फाइबर। जो इंसान फाइबर खाता है उसको लाइफ में डायबिटीज होता नहीं है, ओवरवेट होता नहीं है। एंड वेयर इज फाइबर फाउंड? ओनली एंड ओनली इन प्लांट फूड्स। एनिमल फूड, प्रोसेस फूड में नो फाइबर, प्लांट फूड में भर भर के फाइबर। ये फाइबर वर्ड आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल हु वांट टू रिवर्स डायबिटीज, उनका लिए बेस्ट फ्रेंड इज फाइबर। ओके, नेक्स्ट, एवरीबडी लास्ट 1-1.5 साल में एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी। आपको मालूम है देयर इज समथिंग नोन एज द गट। हमारे पेट के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज द गट। 85% हमारी जो इम्यूनिटी है वो इस पेट के अंदर है, एंड हमारे जो पेट के अंदर गट बैक्टीरियाज है, उसका खाना क्या है? उसका खाना इज फाइबर। मतलब जब भी आप पपीता, बेदाना, ब्रोकली, गाजर खाते हैं, केवल आप नहीं खाते हैं, आपके पेट के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया है, वो भी खाना खाते हैं। बट जब आप बिस्किट, चाय, टोस्ट, भुजिया खाते हैं, केवल आप ही खाना खाते हैं, आपके पेट के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया का कोई खाना मिलता नहीं है, क्योंकि उस खाने में फाइबर नहीं है। अब समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? सो अगर डायबिटीज रिवर्स करना है, यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग मोर फाइबर, मोर प्लांट फूड्स। अनदर वे टू लुक एट फूड इज मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स, माइक्रो मतलब विटामिन, मिनरल्स, एंड द थर्ड क्लास नोन एज फाइटोन्यूट्रिएंट्स। Now this is very interesting. Next, phytonutrients मतलब phyto means plant, which means जितने ज्यादा कलरफुल फ्रूट एंड वेजिटेबल खाओगे, वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम, गाजर, ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी, जितने ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग अलग कलर के खाओगे, उतने आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, a big study was done. 74% people do not eat enough red. 69% people do not eat enough green. 83% people do not eat enough white. Now, let us look at white. There is something known as EGCG, Allicin. अभी ये सब फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, हमें टेक्निकल नाम में नहीं जाना है, पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एलिसिन। एलिसिन इज अ कंपाउंड जो गार्लिक में पाया जाता है। Allicin, Simran, can you put your mouse near allicin so that people can see? Allicin is a compound जो गार्लिक के अंदर पाया जाता है। ओके, गार्लिक के अंदर। इट इज एक्सीलेंट फॉर एंटी कैंसर, वेरी गुड फॉर फैटी लिवर, वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल। लेट अस लुक एट ग्रीन। ग्रीन में जो लास्ट वर्ड है सल्फोरफेन। ओके, सल्फोरफेन जो वर्ड है, इट इज अ न्यूट्रिएंट जो ब्रोकली में पाया जाता है। ओके, ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है, विच इज वेरी वेरी गुड फॉर रिवर्सिंग डायबिटीज, वेरी गुड फॉर गट बैक्टीरिया, उसीलिए ब्रोकली इज रामबाण फॉर डायबिटीज। ओके, सो कहने का मतलब है कि जितने ज्यादा कलर खाएंगे। नेक्स्ट, 80% पीपल डू नॉट ईट इनफ येलो एंड ऑरेंज। 76% पीपल डू नॉट ईट इनफ पर्पल एंड ब्लू। जितने ज्यादा हम कलर्स खाएंगे, हमें उतने बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। अभी विंटर्स में आने वाला है लाल पत्ता गोभी, पर्पल कैबेज, रामबाण फॉर डायबिटीज। पर्पल कैबेज से हमारे पैंक्रियाज से बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं, दे गेट रिजुविनेटेड। तो पर्पल कैबेज से हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बनाता है, अपने आप शुगर कम होता है। जस्ट स्टॉप शेयरिंग फॉर वंस। सो प्लांट फूड ज्यादा खाना है, फाइबर ज्यादा खाना है, ज्यादा कलर्स खाना है।
अभी हम आपसे एक रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल, ध्यान से समझेंगे। जब हमारे पास कोई पेशेंट आते हैं तो हम उनसे 2 पेज का फॉर्म भरवाते हैं, ओके। सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हैं, नींद कैसा है, पेट साफ होता है कि नहीं, गैस होता है कि नहीं, प्रॉपर उनके बारे में हम समझते हैं कि वो करते क्या है, ओके। 90% लोग जो उनका फॉर्म भरते हैं खाने पीने का कि सुबह से लेकर रात तक क्या खाते हैं, उसमें लिखते हैं सुबह चाय बिस्किट, फिर पोहा भुजिया समथिंग लाइक दैट, दोपहर को घर का खाना रोटी सब्जी दाल चावल, शाम को चाय बिस्किट और रात को डिनर। लंच एंड डिनर हम सबको रोटी सब्जी दाल चावल आराम से करना है, पर लंच एंड डिनर के अलावा पूरे दिन में वो व्यक्ति जो चाय बिस्किट पोहा भुजिया शाम को चाय बिस्किट खाता है, वो लंच एंड डिनर के अलावा पूरे दिन में कितना फाइबर खाया, कितना प्लांट फूड खाया, कितना कलर्स गए, कितने वेराइटी ऑफ प्लांट फूड्स गए, नहीं के बराबर। एंड यहीं पे एक दूसरे व्यक्ति है जो सुबह उठ के सीजनल फ्रूट खाते हैं, फिर स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं, फिर लंच के पहले रेड येलो ग्रीन कैप्सिकम ब्रोकली का सलाद खाते हैं, फिर लंच खाते हैं, शाम को नाशपाती पपीता पंपकिन सीड चिया सीड्स खाते हैं विच इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज, रात को डिनर नॉर्मल घर का खाना, उसके पहले कच्चा पपीता गाजर बीन्स का सैलेड खाते हैं। दोनों व्यक्ति ने सेम लंच और डिनर किया है, पर कौन कौन ज्यादा अच्छा हेल्थ होगा? आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? बोथ आर हैविंग, कोई दोनों में से कोई डाइट नहीं कर रहा, दोनों सेम लंच एंड डिनर कर रहे हैं, पर लंच एंड डिनर के अलावा पूरे दिन में हम क्या करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें लोग ध्यान देते नहीं है। फिर वो बोलेंगे हम तो बाहर का खाता ही नहीं है, हम घर का ही खाते हैं। अरे लेकिन न्यूट्रिशन कितना जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ग्रेट। लेट्स स्टार्ट अगेन सिमरन। सो वेरी क्विकली नेक्स्ट, उसके बाद जाएंगे इस स्लाइड के बाद, we can skip this slide, next। इंपॉर्टेंट कौन, ये सब आप ध्यान से समझेंगे, ओके। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डायबिटीज पेशेंट, क्योंकि अगर हमें ये रिवर्स करना है ना तो हमें ये 4-5 कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नंबर 1, इंसुलिन रेजिस्टेंस। नाउ व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? सिमरन कैन यू प्ले द वीडियो नाउ? हम लोग जब, ऑल ऑफ अस, हम लोग कोई भी जन जब कुछ भी खाना खाते हैं ना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऊपर जाता है, राइट? उस ग्लूकोज ऊपर जाता है एंड उस ग्लूकोज को नीचे लाने के लिए, उस ग्लूकोज को नीचे लाने के लिए हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है। यू कैन प्ले सिमरन, यू कैन प्ले दिस। सो जब भी हमारे बॉडी में हम गाजर खाए, अमरूद खाए, पपीता खाए, बिस्किट खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, टोस्ट खाएंगे, भुजिया खाएंगे, कुछ भी खाएंगे ना, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऊपर जाता है। एंड जब ग्लूकोज ऊपर जाता है, हमारे पैंक्रियास में से इंसुलिन बनता है, हमारा पैंक्रियास इंसुलिन बनाता है जो ग्लूकोज को नीचे लेके जाता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो हम सब में होता है। 2 साल के बच्चे से लेके 80 साल के व्यक्ति में ये प्रोसेस होता है कि खाने से ग्लूकोज बढ़ता है, जब ग्लूकोज बढ़ेगा तब पैंक्रिया इंसुलिन बनाते हैं, जिससे इंसुलिन ग्लूकोज को सेल्स के अंदर लेके जाते हैं, राइट? कैन यू प्ले द वीडियो? When food is ingested, it travels along the digestive tract, where it is broken down into its component nutrients. वॉल्यूम प्ले करिए, वॉल्यूम थोड़ा कम करिए so that हम साथ-साथ में समझ सकें। In order to be absorbed into the bloodstream. One such nutrient is glucose, a simple sugar. Glucose stomach and intestines, and then enters the bloodstream. ध्यान से समझो, कुछ भी खाया, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ा,
बट ग्लूकोज अकेला सेल के अंदर नहीं जा सकता है। Once ग्लूकोज को अगर absorbed, सेल में जाना है, glucose circulates, causing the blood sugar level to rise. An increased level of blood sugar sends a signal to the pancreatic beta cells, which ग्लूकोज बॉडी respond में by बढ़ेगा तो इंसुलिन पैंक्रियास बनाता है, जो ग्लूकोज को फिर सेल के अंदर लेके जाता है। Insulin is necessary for glucose to reach and be used by several important target tissues throughout the body. These include the liver, muscle, and adipose tissue. Insulin is necessary to keep blood glucose levels stable in the body. ध्यान से समझेंगे, देखिए, चलने दो, पॉज करेंगे, हाँ, थोड़ा सा चलने दो, 2 सेकंड, फिर पॉज करेंगे, 3 सेकंड चलने दो, प्ले करो। Glucose enters the cell through a process. Yes. Now, जो आपके सामने जो स्क्रीन में जो 2 पर्पल कलर के दिख रहे हैं जिसके ऊपर इंसुलिन आके बैठा है, that is known as insulin receptor. Can you just go back 5 seconds, 10 seconds back? 5-10 seconds, थोड़ा सा बैक करो, हाँ वहीं पे थोड़ा बैक, और थोड़ा सा, अरे थोड़ा आगे, और हाँ, now you see this, बस ये पॉज, या जस्ट गो बैक, वो लिखा हुआ था वो चाहिए, बस। अभी सुनिए आप लोग सब, ये जो सेल है, ओके, दिस इज अ सेल, हमारे बॉडी में करोड़ों सेल है, हर एक सेल में देयर इज समथिंग नोन एज रिसेप्टर्स, ओके। रिसेप्टर मतलब सोचो एक दरवाजा है, और हर एक हार्मोन के दरवाजे होते हैं, मतलब हमारे हर एक सेल में इंसुलिन रिसेप्टर है जहां पे इंसुलिन आके बैठेगा, देयर इज थायराइड रिसेप्टर, देयर इज सेक्स रिसेप्टर, स्ट्रेस रिसेप्टर्स, लॉट ऑफ रिसेप्टर्स, जहां पे वो हार्मोन्स आके, जिसका जो काम है केमिकल मैसेंजर्स, हार्मोन्स आके उसमें बैठेंगे, ओके। तो ये इंसुलिन रिसेप्टर है। जब आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, अभी मानो आप 20 साल के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, क्योंकि आप पिज्जा खाएंगे तो शुगर ज्यादा बढ़ेगा ना बॉडी में, ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा, और अमरूद खाएंगे तो शुगर कम बढ़ेगा। जितना शुगर बढ़ेगा पैंक्रियाज उतना इंसुलिन बनाएगा। मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना ग्लूकोज बॉडी में बढ़ेगा उतना पैंक्रिया इंसुलिन बनाएगा। तो अमरूद खाएंगे, पपीता खाएंगे तो ग्लूकोज कम बढ़ेगा तो पैंक्रियाज इंसुलिन कम बनाएंगे। पिज्जा, बर्गर, डोनट, कोका कोला ज्यादा पिएंगे तो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा तो पैंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बनाएंगे। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? जब सालों से आपकी लाइफस्टाइल खराब हो, खान पान खराब हो, ग्लूकोज बॉडी में बढ़ रहा है, पैंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बना रहा है, वो उस दरवाजा में आके फिट करने के लिए धीरे धीरे वो दरवाजा छोटा होते रहेगा, एंड योर सेल्स विल बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। मतलब वो जो इंसुलिन आ रहा है वो ठीक से उसमें बैठ नहीं पा रहा है। तो क्या होगा, पैंक्रियाज बोलेगा और इंसुलिन बनाओ, पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा सो दैट वो उसमें बाइंड हो और शुगर नॉर्मल आए। 90% डायबिटिक मेडिकेशन इज कि पैंक्रियाज इंसुलिन ज्यादा बनाएगा। धीरे धीरे 10, 15, 20 साल बाद, 25 साल बाद एक दिन पैंक्रियाज बोलेगा कि और मैं इंसुलिन नहीं बना सकता, तब बाहर से इंसुलिन बॉडी को दिया जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या चीज पे ध्यान दिया कि हमारा शुगर नीचे रहना चाहिए, इंसुलिन दो, शुगर नीचे रहना चाहिए। बट क्या हमने इंसुलिन रिसेप्टर को अच्छा बनाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस को, सेल्स को था जो बन गया उसको अच्छा बनाया? नहीं। एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। एंड देयर आर, अभी खाने पीने में बहुत सारा खाना पीना है जिससे ये दरवाजा जो छोटा हो गया है उसको हम वापस बड़ा बना सकते हैं। मतलब आप इंसुलिन रिसेप्टर्स को और इंसुलिन सेंसिटिव बना सकते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अगर ये थियोरी ना हर डॉक्टर को पेशेंट को बैठ के पेन पेपर में समझाना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप समझेंगे और उसके लिए आप सही काम करेंगे, देखो आपको अगर सही चीज का ज्ञान होगा ना तो आप जो भी करोगे ना, अब आप लाल पत्ता को भी खाओगे तो आपको मालूम होगा ये मेरे डायबिटीज के लिए अच्छा। आप जो समझ के करोगे ना तो आपको जो करने पे आपको मीनिंग समझ में आएगा।
right? You can assign meaning to work. So very important. Okay, next, go back to the PPT. So insulin resistance is the root cause, और हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है, हमें शुगर को रिवर्स नहीं करना है. इंसुलिन रेजिस्टेंस दरवाजा खुलेगा तो अपने आप इंसुलिन ठीक से बाइंड करेगा एंड हमारा शुगर कम होने लगेगा, right? So this is very very important concept of insulin resistance, which is the root cause of type 2 diabetes. But unfortunately 90% people with type 2 diabetes don't understand or don't know कि हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है. सेकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ रिवर्सल इज फाइबर. फाइबर का हमने बात की है. जो इंसान फाइबर खाता है, अभी देखो, अभी ये जो सीजन है, अभी नाशपाती मिलना चालू है. नाशपाती आप समझते हैं, पियर, नाशपाती मिलना चालू हुआ है. इट इज एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज, सो मच फाइबर. तो अभी सीजन का में नाशपाती खाना चाहिए ना. द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू जो भी डायबिटीज रिलेशन में जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, द गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू इज विंटर इज कमिंग. 1 महीने बाद विंटर वेजिटेबल्स चालू हो जाएगा. ब्रोकली, लाल पत्ता गोभी, टर्निप, so many, radish, so many, which is excellent for diabetes. Okay, so आज अगर आप अभी अगस्त सितंबर में कोई चाहे ना अच्छा खाना पीना करना है, there are so many options available till February कि फरवरी में 100% आपका डायबिटीज रिवर्स होता ही है. नेक्स्ट, इंटरमिटेंट फास्टिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना आप लोग ने? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, एक्सीलेंट फॉर डायबिटीज. सुना आप लोग ने? यस और नो चैट बॉक्स में लिखेंगे. यस और नो, इंटरमिटेंट फास्टिंग सुना आप लोग ने? वेरी नाइस. व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? ये ना आप लोग सबको करना चाहिए. कि क्या है हम आपको समझाते हैं. व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब, जस्ट स्टॉप शेयरिंग. इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब जिस टाइम में, समझिए वेरी सिंपल, जिस टाइम में आपका डिनर होता है, जिस टाइम में आपका डिनर होता है उस टाइम से 12 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे. ध्यान से समझिए, जिस टाइम में हमारा डिनर होता है उस टाइम से 12 घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे. दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. ओके, वेरी सिंपल. 8 बजे रात को खाना खा लीजिए, सुबह 8 बजे चालू करिए, 12 घंटा. बहुत जन 14 घंटा करते हैं. 7 साढ़े 7 बजे रात को खा लीजिए, सुबह 9 बजे चालू करिए. 14 आवर इंटरमिटेंट फास्टिंग. वेरी सिंपल. बट ये क्यों करना चाहिए? अगेन, हर चीज हमको समझ के करना है. क्यों करना चाहिए? कोई भी इंसान को जब बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? चैट बॉक्स में लिखो मोर और लेस. कोई भी इंसान को बुखार होता है तो भूख ज्यादा लगता है या कम लगता है? लेस. वेरी गुड, लेस. आप लोग सब समझते हैं. वेरी गुड. मोस्ट ऑफ सुनीता जी सेज लेस, आरती जी सेज लेस. वेरी नाइस. Very nice. Sunil ji says less. Sudha ji says less. Very good. Very good. Now, क्यों कम लगता है? Now understand this very very well. हमने गट बैक्टीरियाज का बात किया, राइट? गट बैक्टीरियाज हमारे पेट में. उस गट बैक्टीरियाज के 2 मेन काम है. पहला काम या तो खाना को डाइजेस्ट करेंगे या बॉडी को साफ करना है. हमारे पेट में करोड़ों बैक्टीरिया है, उसका 2 काम है, या तो खाना को डाइजेस्ट करना है या तो बॉडी को साफ करना है. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब हमको बुखार होता है, बॉडी इज इंटेलिजेंट, वो अपने आप डाइजेशन कम करता है. हमको खाने का मन नहीं करता है क्योंकि बॉडी का पूरा फोकस होता है कि जो इन्फेक्शन हमारे अंदर आया है
जिसके कारण फीवर हुआ है उस इंफेक्शन को बाहर फेंकना है. So body doesn't want to digest, body wants to clean the system. So अपने आप digestion कम होता है. So when we are doing intermittent fasting, you are not eating for 12, 13, 14 hours. Your body is not digesting, your body is cleaning the system. अब समझ गए? You are giving break to your digestion that you don't have to digest much. 12, 13, 14 hours, you should take break. Now, when you're giving break, you're not eating, glucose नहीं बढ़ता है, पैंक्रियास इंसुलिन ज्यादा नहीं बनाते, एवरीबॉडी गेट्स रेस्ट, जो एक्स्ट्रा इंसुलिन बॉडी में है दैट इज बीइंग यूज्ड एज एनर्जी, एंड धीरे 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 इट वर्क्स वेरी नाइस फॉर डायबिटीज. इनफैक्ट यू नो आप लोग सब बैंगलोर से, राइट? मोस्ट ऑफ यू, सॉरी, From all over. From all over. okay. बैंगलोर में ना देयर इज बैंगलोर डायबिटीज सेंटर. बैंगलोर में एक बैंगलोर डायबिटीज सेंटर बोल के, वहां डॉक्टर परमेश बोल के, डॉक्टर परमेश, आप गूगल भी करोगे ना, डॉक्टर परमेश बैंगलोर डायबिटीज सेंटर, इज अ वेरी गुड, वेरी बिग डॉक्टर. उनके साथ मैंने काफी लेक्चर्स वगैरह किए एंड आई नो हिम. अभी 7-8 साल से आई नो हिम. ये प्रॉपर डायबिटोलॉजिस्ट है, डॉक्टर बहुत बड़े डायबिटीज के हैं, उनके काफी इंटरनेशनल पेपर्स वगैरह आए हैं. 35 ईयर से वो डायबिटीज प्रैक्टिस करते हैं. बट लास्ट 9-10 साल से वो अपने पेशेंट को भी खाना पीना इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कराते हैं. सो आई रिमेम्बर अभी हिम बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात कर रहे हैं. उन्होंने कितने जन को देखा है इंसुलिन बंद होते हुए, बिकॉज वो बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग में प्रैक्टिस कराते हैं. और मेरे साथ उन्होंने जब एक लेक्चर किया था, उस लेक्चर में उन्होंने बोला था कि मैं 35 ईयर से डायबिटीज प्रैक्टिस करता हूँ, पर लास्ट 10 साल से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, खाना पीना ये सब भी बहुत प्रमोट कर रहा हूँ. अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने वो क्यों पहले 20-25 साल भी नहीं किया. अब समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सो इट इज सो पावरफुल, फूड लाइफस्टाइल. एंड कुछ तो खाएंगे, मैदा तला हुआ पैकेट फूड कम करना है, प्लांट फूड ज्यादा खाना है, अच्छा ही होगा, कुछ बुरा तो होगा नहीं, राइट? बट हमें सही चीज का ज्ञान होना चाहिए. स्टार्ट शेयरिंग अगेन सिमरन. सो पहला कॉन्सेप्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना. दूसरा फाइबर ज्यादा खाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर. तो 12 घंटा 13 घंटा इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, हम कुछ नहीं खाएंगे, बट जो 12-13 घंटा हम खाएंगे, जो 12 घंटा 11 घंटा हम खाएंगे, उसमें फाइबर हमें ज्यादा खाना है, प्लांट फूड ज्यादा खाना है. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पका हुआ खाना, कुक्ड फूड हम दिन में 2 बार खाएंगे. कुक्ड फूड दिन में 2 बार खाएंगे, दैट इज लंच एंड डिनर. पका हुआ खाना दिन में 2 बार खाएंगे, लंच एंड डिनर. उसके अलावा हम दिन में पका हुआ खाना नहीं खाएंगे. दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर डायबिटीज. जैसे मैंने बताया, सुबह फ्रूट्स खाएंगे, फिर स्प्राउट्स खाएंगे, लंच डिनर पका हुआ खाना खाएंगे, बट उसके अलावा प्लांट फूड हम ज्यादा खाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट few things which are very good for diabetes, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं. नंबर 1, मेथी दाना. मेथी दाना is very very good. भिंडी seeds are very very good. There is something known as पनीर का फूल, और we call it anti diabetic herb. उसको बस बॉईल करना है और उसका पानी पीना है. ड्रम स्टिक्स, माय फेवरेट. ड्रम स्टिक समझते हैं आप? ओके. दुनिया में नंबर 1 फॉर इम्यूनिटी. ओके, number 1 for immunity is drumstick. Drumstick is superfood when it comes to diabetes, blood pressure, immunity, liver. Very very good. Okay, drumstick. So boil करना है, lunch dinner के पहले लेना है. पनीर का फूल, रचना जी ऐसा है, उसको boil करना है. इनफैक्ट ये तीनों चीज एक्चुअली, भिंडी सीड, मेथी दाना, पनीर का फूल आप एक गिलास में डालें. यू कैन ऐड जीरा, तुलसी, पुदीना ऑल्सो, और बॉईल करें. एक गिलास को थोड़ा कम करेंगे, छान के चाय के कप में डालना है एंड काढ़ा की तरह इसको पीना है. दिस काढ़ा इज मैजिकल फॉर डायबिटीज. हम कितने जन को काढ़ा देते हैं, जीरा, तुलसी, पुदीना, भिंडी सीड, मेथी दाना, पनीर का फूल. दिस इज वेरी वेरी गुड. ओके, वेरी वेरी गुड फॉर डायबिटिक पीपल. अब समझ गए हम क्या बोल रहे हैं? वेरी नाइस. नेक्स्ट, purple cabbage, as I told you, also very very good for so paneer ka fool is a herb. Actually it's technically a ayurvedic herb.
which is very very effective for bringing sugar down. Okay. Next, purple cabbage, लाल पत्ता गोभी, very good for diabetes. पनीर के फूल के नाम से ही मिलता है. एंड तुलसी पुदीना जीरा मेकिंग, या सबको बॉईल करके एंड वेरी नाइस. पनीर का फूल इज वेरी गुड फॉर डायबिटीज. बीन्स फैमिली, बीन्स, बरबटी, all of that is very good for diabetes. Okay. Broccoli is another excellent remedy for diabetes. So broccoli soup या broccoli salad में, but you should have कच्चा पपीता. So कच्चा पपीता broccoli soup is a very, याद रखेंगे कोई भी सूप में, डायबिटीज वाले के लिए कोई भी सूप में टमाटर नहीं जाना चाहिए. ओके, खट्टा नहीं जाना चाहिए. ओके, फॉर डायबिटीज पीपल खट्टा नहीं जाना चाहिए. ओके, सो ग्रीन सूप इज बेस्ट. कच्चा पपीता, ब्रोकली, ये सब सूप इज वेरी नाइस. यू कैन ऐड ब्रोकली इन सूप आल्सो, दैट इज वेरी नाइस, बट you avoid khatta in your soup. Okay, now few good things for diabetes. Number 1, green leafy vegetables, cruciferous vegetable. Yes, गोइंका जी, ब्रोकली थायराइड वाले के लिए हफ्ते में 1 या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं. या भिंडी से बेटर, भिंडी सीड्स इज बेटर. Now green leafy vegetables, cruciferous, no, it's not about tomato से शुगर नहीं बढ़ता, it makes खट्टा से बॉडी एसिडिक होता है, so you avoid. Okay, lemon is good in water. Plain lemon water is alkaline, but lemon in food is acidic, so you avoid. Okay, stir fry, Vinay ji, stir fry, saute करके broccoli in salad. कच्चा नहीं, saute करके. Green leafy vegetable, cruciferous vegetable, onion, beans, garlic, drumstick, very nice. Pomegranate, nashpati, papita, chia seeds. Chia seeds, very good for diabetes. करना क्या है, 2 चम्मच chia seed 1 गिलास पानी में डालना है, मिनिमम 15-20 मिनट सोक रहेगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, आधा 1 गिलास पानी पीना है और वो चिया सीड को घिटना है. एज सिंपल एज दैट. वेरी गुड फॉर थायराइड, वेरी गुड फॉर डायबिटीज, वेरी गुड फॉर फाइबर, वेरी गुड प्लांट प्रोटीन, पेट साफ के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, भर के फायदा चिया सीड. 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम होता है, 1 गिलास दूध में जितना कैल्शियम होता है उसका 3 गुना कैल्शियम 2 चम्मच चिया सीड. ओके, ग्रेट. वर्स्ट फूड दैट यू शुड अवॉइड, नॉट गुड, मैदा, तला हुआ, पैकेट फूड. चिया सीड 2 चम्मच दिन में 1 बार, उषा जी, उससे ज्यादा नहीं. मिल्क प्रोडक्ट्स नॉट गुड. चाय, कॉफी, छेना, पनीर नॉट गुड फॉर डायबिटीज. आप पहले डायबिटीज रिवर्स कर लीजिए, फिर हम आपके साथ बैठ के चाय पियेंगे. पर अभी एक बार यू शुड अवॉइड दीज थिंग्स. अगेन, कभी कभार इज ओके, महीने में 1-2 बार गेस्ट आए, सब बैठ के चाय पी रहे हैं, बट रेगुलर हमारे अंदर ये नहीं जाना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, बेसिक डूज एंड डोंट्स. ओके, फ्रूट्स सीजनल खाना है. ओके, फ्रूट सीजनल खाएंगे, एम्प्टी स्टमक खाना है. ग्रीन वेज, आलू खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ग्रीन वेजिटेबल में जोर ज्यादा दीजिए. बीन्स फैमिली, वो सब, कुंदरू, बरबटी, ये सब बीन्स फैमिली इज वेरी गुड. खाते गैजेट्स, माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए, ये सब गैजेट एंड मील साथ में नहीं होना चाहिए. मैदा, मिल्क, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब अवॉइड करना चाहिए. 60 minutes, 30 to 60 minutes at least exercise, physically being active is very important. Next, my favorite slide. Okay, my favorite slide. अगर आपको 70-80 साल में फिट रहना है तो आपको ये 4 चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. नंबर 1, फूड एंड न्यूट्रिशन. नंबर 2, फिजिकली बीइंग एक्टिव. ओके, नंबर 3, गुड क्वालिटी स्लीप. नींद अच्छा होना बहुत जरूरी है. एंड नंबर 4, इमोशनल हेल्थ. माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये चारों चीज एवरी डे आपको यही ध्यान रखना है कि ये चारों चीज हमारी अच्छी होनी चाहिए. ओके, अगर ये चारों चीज आप अच्छी रखेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आएंगे और आप बहुत अच्छे रहेंगे. ओके, एंड नींद अच्छा, स्लीप इज अ हार्मोनल इशू, खाने पीने से बहुत अच्छा होता है. ओके, बट ये चारों चीज हमारी बहुत अच्छी रहनी चाहिए.
All right. So thank you so much everyone for understanding this. And I really want all of you कि आप आज जो भी आपको बेसिक नॉलेज मिला है, I hope that will be helpful to all of you. And I really hope that you can learn from this and you can apply this knowledge in your life so that धीरे 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 आपकी आदतें अच्छी हो. जल्दी कुछ हमको कुछ शॉर्टकट या फिर एक हफ्ते में कुछ मैजिक हो जाए, वैसा हमको कुछ नहीं करना है. पर धीरे 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 हमारी अगर आदत अच्छी होगी ना, तो 2 महीने में काफी कुछ अच्छा हो सकता है. एंड 2 साल में तो आप एकदम फिट फाइन हेल्दी, काफी अंदर प्रॉब्लम जो डायबिटीज के कारण होती है, आप कंप्लीटली उसको रिवर्स कर सकते हैं. आप समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नाउ बिफोर आई टेक 2-3 questions, you can stop sharing, Simran. I really want to say a couple of things. Okay. Number 1, your health and your life is in your hands. Please understand the power of this. Okay. I have seen in last 6-7 years so many people completely stopping insulin. किसी को ठीक है टाइम लगता है 6 महीना 8 महीना, इट्स ओके. कोई रेस नहीं है, कोई मैराथन नहीं है, पर हमें सही कर्म करने चाहिए, सही इनपुट होना चाहिए. अगर इनपुट अच्छा होगा ना, तो आउटपुट भी हमारा बहुत अच्छा होगा. आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप फ्रॉम टुडेज सेशन आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली है that you can apply, and once you apply that knowledge, your body will give you feedback within days. 1 महीने के अंदर हम कितने लोग आज तो because of Zoom, thanks to Zoom, पैन इंडिया से काफी जन आते हैं हमारे पास, एंड हम काफी जन में देखते हैं within 1 month they tell us कि गैस एसिडिटी नहीं बन रहा है, पेट साफ हो रहा है, हल्का लग रहा है. फास्टिंग जो पहले 180-200 आता था, अभी 120-115 आने लगा है. योर बॉडी विल गिव यू फीडबैक विद इन अ मंथ. सही करोगे तो फीलिंग अच्छा आएगा ही ना. एंड बिफोर आई टेक क्वेश्चन, आई वांट टू शेयर अ फ्यू थिंग्स विद ऑल ऑफ यू टू इंस्पायर ऑल ऑफ यू, सो दैट आप लोग भी वो कर सके जो बहुत जनों ने किया है. ओके, सो आई वाज जस्ट टेकिंग आउट, आज मॉर्निंग आई वाज जस्ट गोइंग आउट सम डिटेल्स. कैन यू सी माय स्क्रीन ऑल ऑफ यू? Yes, no, anyone give a thumbs up? Yeah, great. So just I have taken out few things today morning just for all of you. ये बहुत छोटा लड़का है, सर्वेश अग्रवाल. Okay, now he's a very young guy. Okay, very very young guy. ये देखिए, सितंबर 2020, लास्ट ईयर सितंबर, HbA1c कितना है उसका? HbA1c वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, 8.4, 3 months एवरेज ऑफ शुगर जो 6 के अंदर होना चाहिए. सितंबर 8.4. ओके, फास्टिंग भी हाई रहता था, पीपी हाई रहता था, एंड HbA1c was 8.4. ओके, दिस वाज which September 2020, and this person बहुत अच्छे से, very young guy, very young boy, बहुत अच्छे से फॉलो वगैरह किए. दिस इज जनवरी 2021. देखो 22 साल का लड़का, 22 ईयर, सर्वेश अग्रवाल. वो था सितंबर, ये है जनवरी. कितना टाइम हुआ? 4 महीना 5 महीना, राइट? एंड हिज HbA1c, उसको फैटी लिवर और शुगर का प्रॉब्लम था, बोथ बिकम बेटर. HbA1c कितना है उसका? 5.6. 6 के अंदर होना चाहिए, which is okay. 5.5 के अंदर तो और भी अच्छा है. From 8 plus 5 months 5.6, 4 months. आप समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जब ऐसे बहुत जन कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, है कि नहीं? अगेन आशा जलान, टेन पॉइंट सिक्स 62 ईयर्स. आप बोलोगे वो तो छोटा लड़का था, जल्दी हो सकता है. 62 ईयर्स, सालों से डायबिटीज. 10.6 फरवरी 2020. ओके, काफी अच्छे से फॉलो किया. यूज्ड टू कीप चेकिंग, काफी टाइम से नॉर्मल था. उनका जो लास्ट रिपोर्ट उन्होंने मेरे को अभी रिसेंटली जो भेजा था 5 जुलाई, 2 महीना पहले, सॉरी 1 महीना पहले,
6. ओके, और उनको काफी टाइम से नॉर्मली है, शी इज मेंटेनिंग वेरी वेल एट 5.9, 6, 6.5 ऐसे. एंड ऐसे भर भर के लोग आते हैं. अब समझ गए हम क्या बोलना चाह रहे हैं. When hundreds and thousands of people can do it, all of you can. Okay, all of you can. So, and then there are a lot of people, 12, 13 HbA1c or 5, 6, insulin 40 unit, 50 unit per day बंद हो जाता है. But it is a journey. It is not overnight. It is a journey. किसी को 4-5 महीना लगे, किसी को 8-9 महीना लगे. But we have to do the right thing. Okay. Thank you so much once again, White Aura. Thank you so much everyone for participating. Try doing things that can really help you. And I really want to see all of you happy and healthy. उससे ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं, right? So thank you so much once again. And if you have any questions, you can reach out to us. I think we are over time for today. But thank you once again. It was a pleasure sharing so much information. Thank you. So can we have 2-3 question answers? Yeah, let's have a couple of questions. Yeah. Sir, many have asked, since you have suggested to eat purple cabbage, but is the thyroid patient can eat purple cabbage? Purple cabbage is okay for thyroid. Broccoli they should avoid. The once in a while is okay, broccoli. And Purple even cabbage for is okay. buttermilk, many have asked, like, if the Okay. milk is bad, so what about curd and buttermilk? Okay, let us understand this. Actually, now, let us understand fundamental thinking पे ध्यान देते हैं. Suppose आप बोलो, देखो कोई भी चीज ना जहर नहीं है, कोई भी चीज जहर नहीं है. तो अगर किसी को छाछ पीना पसंद है, एग्जाम्पल, एंड वो कहता है कि मैं बाकी बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फाइबर खा रहा हूँ, प्लांट फूड खा रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, फिजिकली एक्टिव है, नींद मेरी अच्छी कर रहा हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, पर हफ्ते में 2, 3, 4 बार मुझे छाछ लेना पसंद है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ओके. या अगर आपको लगता है आपका HbA1c 11-12 है, तो 2, 3, 4 महीना अवॉइड करो कंप्लीटली मिल्क प्रोडक्ट. एक बार आपका HbA1c 7 के अंदर आने लगे, देन हफ्ते में 2-3 बार छाछ चालू कर सकते हैं, बिकॉज कंपेरेटिवली कर्ड एंड मट्ठा छाछ आर बेटर. ओके. रेस्ट छेना पनीर मिल्क कॉफी चाय कंप्लीटली अवॉइड, महीने में 2-3 बार. बट कर्ड मट्ठा इज कंपेरेटिवली बेटर बिकॉज मिल्क प्रोडक्ट में देयर इज अ प्रोटीन केसिन व्हिच इज नॉट ओके. जब दूध दही मट्ठा बनता है 80% केसिन गोज आउट. ओके. प्लस उसे प्रोबायोटिक है, सो कंपेरेटिवली बेटर. बट अगर हाई है, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, हाई शुगर, अवॉइड कंप्लीटली. एक बार आप बेटर हो जाओ, फिर कभी कभार मट्ठा ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? सो बी माइंडफुल. ओके. 90-95% अच्छा चीज करो, कभी कभार इधर उधर चलेगा, बट दैट डजंट मीन आप बोलो कि मैं बाकी सब अच्छा कर रहा हूं, मैं रोज चाय पीना चाहता हूं. नो, मिल्क इज वेरी एसिडिक. हमें कोई भी चीज का एडिक्शन नहीं होना चाहिए. लॉट ऑफ पीपल से कि हम चाय नहीं पीते तो माथा दुखता है, सुस्ती लगता है. इट इज एन एडिक्शन. अगर हमें एडिक्शन है तो वो एक और कारण है कि हमें चाय नहीं पीना चाहिए. पीजिए महीने में 2-3 बार, बट रोज ऐसा नहीं कि वो नहीं पिएंगे तो माथा दुखेगा. आप डायबिटीज रिवर्स करो, फिर अपने दोनों साथ में बैठ के चाय पिएंगे. पर अभी यू शुड नॉट डू बैड थिंग्स. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सुनील जी, आपको कुछ कहना था? सुनील जी, yes, मुझे 2-3 क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली लाइक योर सेशन एंड आई रिसीव्ड योर लिंक थ्रू सम ऑफ मधुसूदन जी रूंटा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस. करण जी, एक मुझे क्वेश्चन ये था कि मुंबई का पानी जो है इटसेल्फ पेट को भारी रखता है पूरा टाइम. And of course, I mentioned that I'm hypothyroid since 1992 and I'm 61 year old. ऐसे में हेल्थ मेरा काफी हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन कंटिन्यूटी जो है, अरे एक मैंने एक्सरसाइज नहीं किया छूट गया, वापस 15 दिन नहीं किया छूट गया, फिर वापस शुरू करता हूँ. पर द इशू हियर इज कि लेटली मेरा डायबिटीज थोड़ा ऊपर होने लग गया. मेरा बेटा इज क्वाइट नॉलेजेबल ऑन वेरियस न्यूट्रिया प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स. सो ही वाज टेलिंग मी द मुंबई वाटर is very bad. Itna minerals hai which causes more acidic in the water, and you always feel heaviness in the stomach because of Mumbai water. Number 1 is that very important question. Number 2 is मुझे sugar का जो है अभी तक बीमारी नहीं हुई. Of course, my whole family, our entire Goenka family has always been sugar problems. Very nice. Okay. And I want to avoid this. आपकी एज कितनी है? हाँ जी. आपकी एज कितनी है? 61. First and foremost, Sunil ji, at the age of 61,
यू आर गुड, यू आर वेरी गुड. Oh, thank you very much. हमें आगे और 10, 15, 20 साल भी ऐसे ही रहना है. That should be our objective, right? That's what my aim is. Now, दो तीन चीज है. एक, obviously खाना पीना बेटर. आज के सेशन से जो भी आप समझे उसको प्लीज अप्लाई करेंगे, है ना? More plant food and things like that. I do that. Yes, वो ज्यादा अप्लाई करेंगे, उससे शुगर लेवल वगैरह काफी बेटर हो जाएंगे. Thank you. एंड सेकेंडली, हमारे कंट्रोल में जो हो वो हमें 100% अच्छा करना चाहिए. अभी मुंबई का वाटर हमारे कंट्रोल में तो है नहीं. Correct. जो एटलीस्ट अपने आरओ फिल्टर्स लगा के बॉयल गर्म करके मटके में रख के जो भी करना है वो अपने कर सकते हैं टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट. कि बॉयल करें, जैसे बोलो पहले होता था, वी स्टिल प्रैक्टिस इन आवर होम, वी बॉयल द वाटर एंड मटके में रखते हैं, देन यू ड्रिंक. Whatever ways you can do to make it better, but that we should do. But don't worry about that. अगर मुंबई के पानी से प्रॉब्लम होता तो सारे मुंबई वालों को प्रॉब्लम डायबिटीज हो जाता है. You understand what I'm saying? So you try and minimize those things जो हमारे कंट्रोल में ज्यादा नहीं हो, but at least जो हमारे कंट्रोल में हो उस पे अगर आप फोकस करोगे, लाइफस्टाइल बेटर होगा, lot of right things आप करोगे. I have no doubt that someone like you, मुझे बात करके ही समझ में आ रहा है that you are conscious, you are aware, you understand right things. If you do right things, there is no reason why next 10, 15 years also you should be like this. Yeah. My major problem is very stressful and very poor sleeper. Very, very poor sleeper. My everything is good. I'm a दिन में 2 घंटा exercise कर लेता हूँ without any tiredness, and I control myself also very well. But the whole issue is sleep, and what you said, I'll really take care of it. And but this is sleep का बताइए मुझे कैसे क्या किया जाए. I'm a meditator. Still, I'm a problem. Excellent. Meditation is very nice. दो चीज. कोई भी इंसान को नींद कब आता है? बताइए. कोई भी इंसान को नींद कब आता है? Of course, रात को जब, और साथ साथ में डे टायर्डनेस है वर्क की, तो रात को when is totally. अगर थकने से नींद आता तो दुनिया में नींद का प्रॉब्लम होता ही नहीं. सब शाम को बोरीवली स्टेशन पे भागते, थक जाते, फिर सो जाते, राइट? सो स्लीप इज अ हार्मोनल इशू. हमारे बॉडी में स्लीपिंग हार्मोन्स है लाइक मेलेटोनिन विच हैव टू बी रिलीज्ड सही टाइम पे और सही मात्रा में. अगर स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज हुए तो हमें नींद आता है. उसीलिए जब कोई अमेरिका से इंडिया आता है 2-3 दिन उनको वहां के हिसाब से नींद आता है, क्योंकि उनके स्लीपिंग हार्मोन्स आर रिलीज्ड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम जोन. सो स्लीप इज अ हार्मोनल प्रॉब्लम. Okay. मींस कि अगर हमारे अंदर वो स्लीपिंग हार्मोन्स बैलेंस होने लगे और सही टाइम पे सही मात्रा में नींद आए, सही टाइम पे सही मात्रा में स्लीपिंग हार्मोन्स रिलीज हो, तो हमारा नींद 2 महीने में फर्स्ट क्लास हो सकता है. अभी नींद अच्छा कैसे करेंगे, स्लीपिंग हार्मोन्स कैसे इंप्रूव करेंगे? हम आपको 5 चीज बताते हैं. Yes, sir. 5 चीज आप करेंगे, 2 महीने में फर्स्ट क्लास सोएंगे. सो ऑल ऑफ यू जो भी सुन रहे हैं, किसी को भी नींद प्रॉब्लम हो, प्लीज ये 5 चीज नोट करें. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देयर इज समथिंग नोन एज जायफल. जायफल नटमेग पाउडर इजीली मिलता है सबके घर पे. जायफल. एंड देयर इज समथिंग नोन एज कैमोमाइल टी. कैमोमाइल टी जैसे वो मिलता है कैमोमाइल टी. तो शाम को 4-4:30 बजे, एनी टाइम 4-5 बजे चाय की तरह आप कैमोमाइल टी पिएंगे, ग्रीन टी की तरह डिप करके, मतलब वो चाय के कप में. एंड उस कैमोमाइल टी में 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर, जायफल को घिस के पाउडर बनाएंगे, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर डालना है. एंड कैमोमाइल टी एंड जायफल पाउडर आपको पीना है 4-4:30. दिस इज वेरी गुड फॉर रिलीजिंग स्लीपिंग हार्मोन्स एट नाइट. पॉइंट नंबर 1. Thanks a lot, Karan ji. I will definitely try this. Point number 2, pumpkin seeds. Pumpkin seeds में जिंक बहुत अच्छा है. And there is a compound known as tryptophan. जब जिंक और ट्रिप्टोफैन मिलता है, हमारे बॉडी में मेलेटोनिन बनता है, which is a sleeping hormone.
नरोत्तम जी, आप ऑनलाइन अमेजोन में मारेंगे ना कैमोमाइल टी, तो आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। गूगल पे उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इन ऑर्डर, ओके, ऑनलाइन। सो पंपकिन सीड ऑल्सो हेल्प स्लीपिंग हार्मोन। कोई भी दिन में फ्रूट के साथ 2-3 चम्मच पंपकिन सीड खाना है। पंपकिन सीड को सोक करके खाना, 1 घंटा मिनिमम सोक करना है। तो उसमें फाइटिक एसिड होता है जो अब्सॉर्ब होने नहीं देता है बहुत सारी चीज, वो फाइटिक एसिड हट जाता है जब हम सोक करते हैं। फिर 2-3 चम्मच पंपकिन सीड आप खाएंगे फल के साथ, तो आपका स्लीपिंग हार्मोन अच्छा रिलीज होगा। The natural pumpkin seed? नेचुरल पंपकिन सीड इजीली बाजार में मिलेगा। आपने जो पंपकिन लेके ग्रीन कलर का सुखा के फिर उसको। तीसरा चीज, नहीं, रेडीमेड मिलता है पंपकिन सीड ग्रीन कलर का, वो मंगा लीजिएगा, उसको सोक करके खाना है। ओके। तीसरा चीज, देयर इज समथिंग नोन एज लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। ध्यान से समझिए आप सबको, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है, 2-4 सेकेंड होल्ड, और लेफ्ट से ही बाहर निकालना। लेफ्ट से अंदर जाएगा, लेफ्ट से ही बाहर जाएगा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग क्यों करना है, कब करना है? जब हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन एयर जाता है, वो हमारे ब्रेन के राइट साइड में जाता है, जिससे पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव्स एंड स्लीप क्वालिटी इंप्रूव्स अ लॉट। ओके। सोने के पहले 30-40 टाइम्स, सोने के पहले 30-40 टाइम्स लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग, रोज सिंपल 5-7 मिनट लगता है, ब्रेक नहीं देना, रोज करते रहना। 15-20-25 दिन में आपको इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। It really calms your nervous system. So left nostril breathing, जायफल, chamomile tea, and your pumpkin seeds. I think this is enough for now. ये करो 2 महीना अच्छे से। फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो इंसान प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीता है उसी को स्ट्रेस होता है, स्लीप प्रॉब्लम होता है। ओके, एंड ये 4 चीज आप 2 महीना करो, आपका अच्छा हो जाना चाहिए। नहीं हो तो बताना, हम और 4 चीज बता देंगे। ओके, but never, all of you, please never ever we should have sleeping medicines. Huge side effect. वो आज तो नींद दे देगा पर 5 साल बाद आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। ओके, सो नो स्लीपिंग मेडिसिन, नो। ओके, और 10 चीजें कर सकते हैं नींद के लिए, बट डू नॉट टेक स्लीपिंग मेडिसिन। थैंक यू सो मच Karan ji, just one last question. सुबह जो चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं लोग, या शाम को चाय बिस्किट खाते हैं, तो उसके जगह पर आप क्या सजेस्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ चाय बिस्किट? सबसे पहले व्हाट इज बिस्किट? It's maida and tea as milk. So I'm asking, what is the substitute which you would recommend? That's the question. So हम लोगों को काढ़ा, जो मैंने आपको काढ़ा बताया ना, वो हम लोगों को बोलते हैं आप चाय समझ के। चाय पत्ती की जगह पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4-5 तुलसी, पुदीना, अजवाइन, सौंफ, इलायची डाल सकते हैं। अगर शुगर है तो भिंडी सीड, मेथी दाना डाल सकते हैं, एंड बॉईल करें, छान के चाय के कप में डालें, एंड जस्ट हैव इट लाइक योर टी। 2 फायदे, 3 फायदे। एक, जीरा पानी, ज्यादा कुछ नहीं डालना है, सिंपल जीरा, तुलसी, पुदीना ही डालो। गैस है तो अजवाइन, इलायची डालो, सौंफ, अजवाइन डालो, गैस एकदम गायब हो जाएगा। हैव दिस काढ़ा मॉर्निंग इवनिंग एज अ टी। इट इज अल्कलाइन। जीरा पानी इज अल्कलाइन, milk tea, liquor tea is acidic. जीरा पानी is detox the body, hormonal balance, body clean करता है, and milk tea, liquor tea body को acidic बनाता है, शुगर को बिगाड़ता है, not a good idea. Okay? पहले 2-3 दिन तकलीफ हो सकता है, सालों का एडिक्शन है तो, बट हमें यही तो चाहिए कि एडिक्शन हटाना है, राइट? कोई भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। सो आगे 20 साल के बारे में सोचेंगे, 2-3 दिन के बारे में नहीं सोचे, बट इसको सिस्टम से बाहर करें। कुछ खाना है तो ताल में खाना है, things like that is okay, or else you can just have this काढ़ा, but avoid milk biscuit on a day-to-day basis. Last I will answer, एक जन 2-3 बार पूछे जूसेस के बारे में। फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 संतरा खाना इज बेटर देन 5 संतरे का जूस। तो कोशिश करो कि आप फ्रूट खाएंगे विद फाइबर रादर देन जूस। हाउएवर, कभी कभी अगर कुछ कारण से लेना हो तो फ्रेश घर पे जूस बना के कभी कभार ले सकते हैं, बट ट्राई एंड ईट मोर फाइबर। कभी भी जो मार्केट में टेट्रा पैक के जूसेस मिलते हैं, रियल के टेट्रा पैक के जूसेस, एप्पल जूस, लीची जूस, वो एकदम ही गड़बड़ है। उसमें एप्पल जूस में एप्पल से ज्यादा चीनी है,
वो कभी भी नहीं लेना है. All right. Thank you so much. Thank you so much, and lovely interacting with all of you. Please apply as much as you can, and be better, be healthy, be happy. Thank you. Thank you. Can I just say something, Dr. Kakkad? Please. In your last session, you had told us about for the drumsticks. And every morning before breakfast, I'm taking your 1 inch of 4 drumsticks, just boil karkar, and it's really done wonders for my sugar. I think I had to tell that it's really done excellent. My sugar has come down to 6, 3-month average. Very nice. Very nice. But I take it before breakfast. Very nice. Usha ji, right? Yes. कितनी उम्र है आपकी उषा जी? I'm 68. Very nice. पोता पोती है आपके? Pardon? पोता पोती है आपके? We don't have any children. Understood. ये जो 68 आपकी उम्र है ना, ये जो 68 आपकी उम्र है ना, ये जब उल्टा होगा ना, उल्टा 86, मुझे अब एकदम फिट चाहिए. ओके, that should be your target. Thank you so much for sharing this. Thank you so much once again, everyone. Yeah. Sir, before winding up, a small thank you note from the White Aura. Sir, thank you for making us understand for the root cause of diabetes and lifestyle disorder. You have provided us with an insight into how diabetes can be managed with simple step-by-step changes in diet, and showing us how nature itself is the best medicine, and also not falling prey to the habit of those expensive diabetes medicine. We feel so energized already and can imagine the wonders that will happen to our body by paying attention to the food we are eating and savor each bite. Your contribution towards spreading awareness about how to reverse diabetes and health naturally is worth an applause. Let's together bid for strong determination, coupled up with a strong self-commitment to reverse the diabetes and turn sweet and healthy life again. Thank you so much, sir. And thank you, audience, for joining us. Thank you, audience, for joining us, and stay with us for the next week's birthday bonanza. Keep guessing the next speaker, and hope this session will do wonders to you. Let's be healthy, let's be fit, and always be together in this mission. Thank you so much, and just wait for 15th August for the birthday bonanza. Thank you, everyone. Thank you, Karan Kakkar and team. Thank you for helping us out with this session.